in this particular topic or video, we are going to discuss the experimental study of the photoelectric effect. More about the photoelectric effect you will be able to understand in the next video also. Now here the experimental study. What experimental study? That effect of, number one is the effect of intensity of incident light on photoelectric current. So first of all, experimental setup is there. This is the experimental setup just to see the cathode, anode, and here the incident light is incident on the cathode, then the electron comes out and it is here connected to the reversing switch. RS means reversing switch, and here the potential voltmeter, and then the rheostat, and then the ST means high tension battery. High tension battery, we can reverse also of this particular high tension battery. Reversing switch is also there, and here the ammeter, micro ammeter is there. Now, here the incident light, incident. Now, incident, the effect of intensity in this particular your effect, we are going to increase or decrease the intensity of light. Then we are going to see what will happen of this thermoelectrons or photoelectrons. In fact, it is the photoelectrons, light is incident. So photoelectrons, इसमें क्या इफेक्ट होगा? करंट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा है, that is your photoelectric current. Number of photoelectrons reached here per unit time is your photoelectric current. अब इसके बारे में जब एक्सपेरिमेंट स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के बाद देखा गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली फोटोइलेक्ट्रिक करंट आईपी क्या? फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ये इसको हम आईपी से नोट करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मीन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमको क्या इंक्रीज होगा? फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ग्राफ में ऐसा होगा। यहां पर अगर हम आईपी ले रहे हैं, इधर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, तो ग्राफ मेरा ऐसा मिलेगा। आईपी मींस photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident light. Photoelectric current is directly proportional provided the frequency of the incident light. लेकिन यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखे हैं। यहाँ पर क्या किए? फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है उससे ज्यादा। मान लेते हैं कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बाय विच द इलेक्ट्रॉन एमिट्स। हर एक मेटल का अलग अलग है। ये मान लेते हैं इतना, तो हम लोग इसको इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं फिक्स कर दी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है 1100 हर्ट्ज पर। तो ये हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। इंटेंसिटी चेंज होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी चेंज होगा। मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो चेंजिंग डायरेक्टली। राइट, दैट इज योर फर्स्ट इफेक्ट। हम इसको आईपी में, अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी ले लेते, आईपी इधर ले लेते, तो भी वही सेम रिजल्ट आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस में वही लेते हैं जो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी of the incident light, and this is your dependent. So better is that
This is one. This one is your X and Y. This is your better is the this particular graph, intensity and the IP. IP means what? Photoelectric current. Intensity of what? Intensity is of the incident light. Okay, now come on to second effect. Second effect of potential or voltage on photoelectric current. सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप. अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है. When a light of suitable frequency, वहां ऐसा था, किस तरह का था वो रीड्रॉ नहीं कर रहे. ये एनोड था, ये कैथोड था. अब देखिए इंसिडेंट लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रही है. When light of suitable frequency greater than the threshold frequency falls on the photosensitive electrode, C कैथोड में अगर आती है लाइट, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होगा. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एंड गिव राइज टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड. अगर इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड और द fixed frequency, this photoelectric current increases with the increase in the opposite applied potential, positive potential. Means अगर हम positive potential पर रखें जो वो डायग्राम में था, तो क्या हो रहा है आपको? यहां पर हो रहा है कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स रखते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द अप्लाइड पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. When all photo electrons emitted by the cathode C, जब सब पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जा रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल में अप्लाई की है. पॉजिटिव पोटेंशियल वही उसी डायग्राम में प्रीवियस जो टॉपिक था उसी डायग्राम में पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई की है. जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, when all photo electrons emitted by the cathode C and reach anode A, then the photoelectric current has a maximum value. This maximum value is known as the saturation current. पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहां आ गए, तो जो करंट होगा उसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट. The maximum current is known as the saturation current. So saturation current will not increase in the potential. Saturation current in this case is will not increase in the potential of the plating. Saturation current हम लोग देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू निकल रहा है. हम इसको फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं. जब ये सैचुरेशन करंट पहुंच गया, इसको फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, तो होगा हो क्या रहा है कि उसके बाद सैचुरेशन करंट इंक्रीज नहीं हो, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था पूरा पूरा यहां पहुंचा. ठीक है, पूरा का पूरा. नाउ द पोटेंशियल ऑफ ए. अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये मैक्सिमम पहुंच गया, मैक्सिमम आईपी सैचुरेशन वैल्यू में पहुंच गया करंट. अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल को रिवर्स करते हैं. Now reverse by the reversing switch. अब इसको रिवर्स कर, रिवर्स मतलब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव था, अब इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको मतलब रिवर्सिंग स्विच का यूज करके हम लोग. नाउ द potential of A is decreased such that it attains the negative potential with respect to C. ठीक है, with respect to C means cathode. Then the photo electron becomes zero. जैसे रिवर्सिंग किए, एक स्टेज आएगा, धीरे धीरे
कि पूरा का पूरा ये निकलना बंद हो जाएगा। तो मीन्स फोटो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स stops. Means IP क्या हो जाएगा जीरो। That's an interesting case. जब रिवर्स किए तो धीरे धीरे ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएगा। At this stage, the minimum, अब हम लोग देखेंगे डायग्राम से देखेंगे, ग्राफ से भी, the minimum negative potential applied to the minimum negative potential applied to the anode for which the photo current becomes zero is called cut off or stopping potential. हम कितना वो एक पर्टिकुलर निगेटिव पोटेंशियल पर जब हम इसको रखें, निगेटिव पोटेंशियल पर रिवर्स करने के बाद, तो जब जिस स्टेज में जाकर आईपी मींस करंट जीरो हो गया, वो जो निगेटिव वैल्यू है दैट इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. इट इज बेटर टू नोट डाउन the minimum negative potential. Note down all of you, the minimum negative potential applied to the plate or anode A for which photoelectric current becomes zero is called cut off or stopping potential. एक नया टर्म आ गया, cut off और stopping potential. Stopping potential. Cut off or stopping potential. At this stage, the maximum kinetic energy of the free electrons or the photoelectrons must be equal to the energy acquired by the electrons while passing through the potential difference V0. अब इसी स्टेज में अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज m V square V max is equal to the E V0. Very very important relation at this stage. ये जब V0 क्या है, ये V0 है stopping potential. Stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल. ये V क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स था उसका मैक्सिमम वेलोसिटी और लॉग स्पीड, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट. सो अगर हम बोलते हैं ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहां पर एक टर्म और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये भी एक रिलेशन है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0. अब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. अगर हम लोग पोटेंशियल और आईपी के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी केस में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एंड योर आईपी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब इधर क्या है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर क्या है, निगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, ये हो गई. तो जैसे ही हम लोग यहां पर अब इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा. ग्राफ इसका पहले कुछ देर बाद जब पोटेंशियल धीरे बढ़ा रहे हैं, ओवरकम कर रहा है, ओवरकम करने के बाद का ग्राफ धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हुआ. फिर ये आईपी बिकम सैचुरेशन. ये क्या बोलेंगे, सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट, आई सैचुरेशन वैल्यू यहां इसका वैल्यू. अब जितना भी हम पॉजिटिव पोटेंशियल दें एनोड में, ये नहीं बढ़ेगा, ये आईपी उतना ही रहेगा. अब हम लोग क्या करते हैं, तो रिवर्सिंग स्विच से फिर हम पोटेंशियल को निगेटिव करते हैं. पोटेंशियल रिवर्सिंग स्विच से क्या करते हैं, एनोड को निगेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. तो वो ऐसे करके ऐसे आएगा उसका डिटेल. फिर हम लोग
और कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, क्या कम कर रहे हैं? पोटेंशियल को कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर निगेटिव साइड में, ये ओरिजिन था निगेटिव साइड में, तब जाके IP 0 हो गया। इसी IP को बोलेंगे, इसी पोटेंशियल को बोलेंगे जब IP 0 होगा, ये निगेटिव साइड में, इसी को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। यहां से यहां जो भी वैल्यू हो, -4 -3 जो भी हो उतना बोल्ट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। पहले वाले केस में इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे थे, अब ये इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी को वैरी करते हैं। दो केस लेते हैं, अब हम इंटेंसिटी को वैरी कराते हैं। तो हम लोग का ग्राफ देखिए, एक पहला इंटेंसिटी के लिए ऐसा है, अब दूसरा के लिए मान लेते हैं यहां से ऐसा करके ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ इधर हम मान लेते हैं I1 दे दिए, अंदर I2। I1 I2 क्या है? ये I1 I2, ये I1 I2 है आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी I1 I2 इंटेंसिटी एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये IP ये IP1 माने करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक, ये है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी दिस I2 इज ग्रेटर देन I1। अगर I2 ज्यादा होता है, एक दो सेट हम लिए, दो बार एक्सपेरिमेंट किए, दो बार करने से क्या हुआ, अगर ज्यादा इंटेंसिटी था तो उस केस में यहां पर हम क्या देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों केस में सेम है। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाए तो सैचुरेशन करंट भी मेरा चेंज हो रहा है। तो इंटेंसिटी के बढ़ने से इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या चीज चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं तो सैचुरेशन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। There's no change in the stopping potential. The stopping potential remains same. Stopping potential में कोई चेंज नहीं, ठीक है? तो the values of photoelectric current in saturation current are higher at higher intensity and lower intensity, right? So conclusion of this is that the conclusion, better to note down the conclusion, the saturation current depends on, conclusion number 1, saturation current depends on the intensity of the incident light. Number 2, for a given beam of incident radiation, the intensity of the incident radiation does not affect the stopping potential. ये इंक्रीज होने के बाद भी स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई इंक्रीज नहीं होता। थर्ड कंक्लूजन इज दैट, थर्ड वन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी emitted by the photoelectrons does not depend on the intensity of the incident light. ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रहा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड on intensity of the incident. स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं किया और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज है, इसलिए ये डिपेंड नहीं करता। थर्ड इज योर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। Third effect number 3, effect of frequency of incident light on photoelectric current.
अभी हम लोग इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी केप्ट कांस्टेंट, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। क्या चीज वेरी कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा है। तब देखिए क्या होता है, साइंटिस्ट लोग मिलकर इसको वेरी कराया तो क्या देखा, देयर इज नो चेंज इन सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। इंटरेस्टिंग, पहले वाला केस में सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी बढ़ रहा है, सैचुरेशन करंट भी बढ़ रहा है। यहां पर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इसमें सैचुरेशन करंट रिमेन सेम, नो चेंज, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल changes. Stopping potential changes. Interesting. Stopping potential changes. Now, यहां पर इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ग्राफ। और इसका ग्राफ देखिए कैसा होता है। इधर पोटेंशियल, इधर फ्रीक्वेंसी दी है, इधर पोटेंशियल। अब यहां पर इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। अब इसका ग्राफ यहां पर आप देखिएगा, सैचुरेशन करंट इज नॉट चेंजिंग, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज हुआ। स्टॉपिंग में नेगेटिव साइड, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होता है, ये 101 V02। सैचुरेशन करंट रिमेन्स इन, सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं हुआ, सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इधर हम लोग पोटेंशियल रखेंगे, यहां फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल, और इधर फ्रीक्वेंसी रखें, फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल, क्योंकि इस तरफ एक्स एक्सिस और ये इंडिपेंडेंट होता है पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के केस में, इंडिपेंडेंट, इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस में ये और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए, यहां पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। तो ये यहां पर सैचुरेशन करंट रिमेन सेम, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस। स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या हुआ? चेंज हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस। यहां पर ये फर्स्ट सेट में मान लो यहां पर न्यू1 फ्रीक्वेंसी था, ये न्यू2, तो न्यू2 को बढ़ाया न्यू1 से, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, मींस ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, कम फ्रीक्वेंसी होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, मैग्नीट्यूड कम। सो यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल is directly proportional to the frequency of the incident light. Frequency of the incident light, directly proportional. Stopping potential is directly proportional to the frequency. और stopping potential को हम लोग ये भी करते हैं, kinetic energy maximum is also directly proportional to frequency. ठीक है, very important graph, and we are going to discuss some more aspects of this in the next video. In the next video, we are going to discuss something more
about the how we are going to draw the graph between kinetic energy and the frequency, etc., etc. Okay, thank you.